and now I knew that he's not there. So for 2 minutes I couldn't speak a word. वो something stuck here. चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है. What is rehabilitation? Rehabilitation means back to normal life. So you are India's 25th DMI practitioner. अगर आप pediatric therapy practice कर रहे हो तो you need to have that certification DMI. Otherwise you cannot touch a child. You also deal with speech therapy. What is the most magical moment for you? कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही रहा है. At Mayur we do a lot of yoga classes to our kids. अवेयरनेस प्रोग्राम होता है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, हर स्कूल में. तो उसमें ये इंक्लूड हो जाना चाहिए बच्चे लोगों को कि पोस्चर कितना इम्पोर्टेंट है. Namaste. Welcome to Kalamveer by Mayur School Siliguri, a podcast where we shine spotlight on real life change makers of our society through the world of education. Today, we have very special guest with us, and I am your host, Kritika Dahal. So let me introduce you to our guest, Dr. Himani Roy. She is a rehabilitation specialist and a chiropractor who has been healing hundreds of lives in a daily basis. She has been practicing since a decade now and been experiencing miracles on daily basis. So let's dive deep into the conversation with the doctor herself. Welcome to the show, Dr. Himani. So let's welcome Dr. Himani to our show. Welcome to Kalamveer, ma'am. Thank you so much for inviting me here. मयूर स्कूल ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है. आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर. Thank you so much. So, before we get into the conversation, I wanted to know what is physiotherapy or what is rehabilitation. Please, tell me something about physiotherapy so that I can also get few insights. Rehabilitation means like the word rehabilitation. It's called return to normal life. Mm-hmm. If you have a problem, like if you have a back pain, Mm-hmm. severe back pain, Mm-hmm. तो आप क्या करते हो, बैक पेन की वजह से आप उठ नहीं पाते हो प्रॉपरली. वॉकिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, सिटिंग में प्रॉब्लम हो जाता है. यू कैन नॉट सिट फॉर लॉन्ग टाइम. सो योर डेली लाइफ विल गेट डिस्टर्ब because of your back pain. So rehabilitation means back to normal life. Okay. So physiotherapy is a process of rehabilitation. There are many other therapies available like occupational therapy, speech therapy, psychotherapy. There are many more things into physiotherapy, speech therapy, psychotherapy, and occupational therapy, chiropractic. These are the process to rehabilitate the person. Okay. So we have been seeing a lot of, while we scroll Facebook, we are seeing a lot of Cairo sessions happening, the cracking sound, like, Cairo ka ASMR bhi banta hai sometimes. So can you enlighten us, like, what is Cairo and how it helps? Okay. Chiropractic. The entire name is chiropractic. So chiropractic session is nothing, जैसे रीअलाइनमेंट करते हैं ना, जैसे कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है तो उसको रीअलाइन करना पड़ता है. वो कायरोप्रैक्टिक हमारे बोन्स के लिए वो प्रोसेस है जो आपको रीअलाइन करती है. जैसे डेस्क जॉब बहुत लोग करते हैं, बैंकर, आईटी प्रोफेशनल्स, डिजिटल मार्केटर, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग हैं, डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, जो लोग डेस्क में काम करते हैं कंटिन्यूअसली. तो उनका क्या हो जाता है, क्योंकि हम लोग काम जब करते हैं तो 7-8 आवर्स काम करते हैं, तो 1-2 घंटे काम से तो नहीं होता है ना, अकड़ जाता है. हाँ. तो वो जो पोस्चर है ना, वो पोस्चर धीरे धीरे वैसे डेवलप होने लगता है. एंड देन मसल्स आर गेटिंग स्टिफ,
मसल्स आर गेटिंग टाइटर. तो ये सब रीज़न की वजह से किसी को अपर बैक में पेन होता है, किसी को लोअर बैक में पेन होता है, किसी को मिडल ऑफ द बैक में पेन होता है. तो बहुत सारे रीज़न हैं. कभी कभी जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह होता है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह होता है. तो इन सब को यू कैन से प्रिवेंट करने में भी कायरोप्रैक्टिक हेल्प करता है, और इसको क्योर करने में भी कायरोप्रैक्टिक हेल्प करता है. Okay. Apart from Cairo, like for the desk job, which you are telling, so apart from Cairo, is there any way we can avoid the joint strain or muscle strain? Or You have to modify your workstation, mm-hmm. which is called ergonomic Yes. modification. Okay. So ergonomic chairs. No, not ergonomic chairs. Ergonomic is a calculation according to your height, your body structure, what should be your position, what should be your table height, what should be your screen, मतलब monitor का height. So this entire calculation comes under ergonomic modification. Marketing के लिए आजकल बहुत है, जैसे ergonomic chair. Ergonomic chair, I know. Yes. Okay, it's just a marketing strategy. They are ergonomic using- bed, Yes. Okay. What is that? Mattresses even. ortho mattresses. Okay. Fine, I understand, but ortho mattress, what is the meaning? Anyway, Okay. let's not get into there. Yes. Okay. So like healthcare is such a demanding profession. How do you manage yourself, or how do you make yourself feel more comfortable doing your work, like how do you ignore muscle strain or something like that? Wait, I'll show you something. See, Keep calm and rehabilitate. Yes. that's the only idea. Okay, yes. So we have to just keep calm, breathe in, breathe out, and rehabilitate. Okay. हार्वर्ड में ऐसे भी कुछ होने वाला है नहीं. Yeah. So, at Mayur, we do a lot of yoga classes to our kids, and we also, enhance our talk about postures, body postures, positions, structures, and mobility. So, what are the things apart from these aspects? What are the things that we as school should incorporate with our kids? ओके, सो जैसे सिर्फ मयूर स्कूल में नहीं, जैसे बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है आज की डेट में पॉस्चर. Okay. 10 साल की बच्ची, 7 साल की बच्चियाँ, लाइक दे आर वॉकिंग इन अ स्टूप पॉस्चर, just because of children need to get in competition. That doesn't mean कि आपको उसको continuously बिठा के मतलब एक के बाद एक क्लासेस होते रहते हैं, जैसे बहुत सारे स्कूल में ऐसे देखा गया है. इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करने से ही हो जाएगा. लाइक जैसे एक क्लास 40 to 45 मिनट का होता है, थोड़ा सा गैप दे दो, थोड़ा सा फिजिक, अगर बच्चे हैं छोड़ दोगे तो वो लोग इधर उधर भाग दौड़ करेंगे ही, उसमें ही उनके बॉडी के स्ट्रेस चले जाएंगे. बीच बीच में थोड़ा सा स्ट्रेच करा लिए Okay. ग्रुप सेशन में, तो दैट इज़ एनफ. Okay. एंड ऑफ कोर्स एक जैसे बाकी सारे चीज़ों के बारे में क्लासेस होती हैं, जैसे टीचर्स बताते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम होता है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, हर स्कूल में. तो उसमें ये इंक्लूड हो जाना चाहिए बच्चे लोगों को कि पॉस्चर कितना इम्पोर्टेंट है, Body posture. बॉडी पॉस्चर कितना इम्पोर्टेंट है. कभी कभी क्या होता है, बच्चों की हाइट बढ़ती है लेकिन समझ में नहीं आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दे ऑलरेडी हैव डेवलप्ड स्टूप पॉस्चर, तो हाइट समझ में नहीं आती है.
स्पेशली आजकल के टीनेजर्स में ये देखा जाता है Because of screen time. बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम, बिकॉज ऑफ उनके हाथ में आईपैड होते हैं या टैब होता है या तो मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो कंटिन्यूअसली वो लोग रहते वो पोस्चर उन लोगों की बिगड़ चुकी है। Yes. और जैसे क्लिनिक में भी हम देखते हैं बहुत यंगस्टर्स आते हैं स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम लेके, जो कि होना नहीं चाहिए। 21 ईयर्स में स्पॉन्डिलाइटिस, 25 ईयर्स में स्पॉन्डिलाइटिस, दिस आर वेरी अनकॉमन थिंग। लेकिन ये आज की डेट पे बहुत कॉमन हो चुकी है, क्योंकि बच्चे पोस्चर पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम उनको बताते नहीं है पोस्चर कितना इम्पोर्टेंट है। So do you think that being a parent, it is very important to educate the child, but अभी तो पेरेंट्स ही स्क्रीन टाइम में बहुत मतलब इंक्लूडेड रहते हैं, इंडल्ज्ड रहते हैं. सो व्हाट इज़ योर थॉट इन दैट? इसमें हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही चाहता है, लेकिन कभी कभी हम बड़े ही इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज़ में, तो हम बच्चों को कैसे उस ट्रैप से बाहर निकालें। तो सबसे पहले मुझे जहाँ तक लगता है, हमें एज अ पेरेंट और गार्जियन हमें थोड़ा सा पहले अवेयर होना चाहिए कि वी नीड टू करेक्ट आवर पोस्चर और वी नीड टू फोकस ऑन आवर पोस्चर, बिकॉज इट विल हैम्पर इन लॉन्गर रन. इट विल हैम्पर इन लॉन्गर। यस. तो ही हम बच्चे को सिखा पाएंगे, क्योंकि बच्चे को सिखाने का तरीका ना ऐसे बैठो, ऐसे करो, ऐसे नहीं होता है। दे विल डू whatever they feel like. whatever they will see. They feel like नहीं, they whatever they will see, they'll do that yes. only. ये एक कहावत है ना, मंकी सी मंकी डू. हम सब मंकी तो हैं, Yeah. थोड़ा अडेप्टेड वर्जन के मंकी से, पर Yes, मंकी yes. ही तो है। हाँ. तो वो हम लोग वही करते हैं जो हम देखते हैं। लाइक जैसे सोशल मीडिया पे रील्स देख देख के हम लोगों का फोमो हो जाता है कि हमको भी करना हाँ, है, हमको भी करना है। वही अरे तो बाप एक रे। के बाद एक के बाद हाँ। एक वो ट्रेंड कैसे मतलब चेन ट्रेंड हाँ। कैसे बनता है. हाँ, अभी जैसे ट्रेंड चला है ऑर्गेनिक फूड, Okay. ठीक है, तो ये अभी सबको फोमो होने लग गया है कि अरे मेरे घर में ऑर्गेनिक फूड नहीं है, तो मेरे को भी हाँ, लगाना है. मेरे को भी करना चाहिए हाँ, कुछ। हाँ. तो ऐसे करके सबके घर में ऑर्गेनिक फूड हो रहा है, विच इज़ गुड, पर ये ट्रेंड की वजह से हो रहा है। बट अच्छा है. बट अच्छा है, दिस इज गुड. लेकिन इसकी वजह से हमारे जो यंग जनरेशन है वो इम्पैक्ट हो रहा है, दैट इज वेरी ट्रू. वेरी ट्रू. लाइक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। indirectly. Okay. So you also deal with speech therapy. हाँ, Can you enlighten us, or can you talk about something about speech therapy? Because when we see children who are not being able to talk, or talk like at जितना उनका मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए उस एज में, वो नहीं हो पाता है. सो हाउ डू यू ट्रीट दैट, और व्हाट इज़ द kind of treatment, or what is the sessions you give? ओके। सबसे पहले तो ये जो स्पीच थेरेपी के बारे में आपने पूछा, ये एक बहुत ही ह्यूज सब्जेक्ट है। इसमें मतलब इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता देती हूँ, तो ताकि कम शब्दों में समझ आ जाए लोगों को। स्पीच थेरेपी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे, ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, जो कन्वर्सेशन हो रहा है, इसकी एक पर्टिकुलर स्किल सेट है। लाइक कौन से लेटर पे आपका एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है। Okay. लाइक ई, Okay. ई तो आप ऐसे करके तो नहीं बोल सकते। ई में आपको हाँ. वाइड एंगल में लेके जाना ही है अपने लिप्स को। फिर ओ आप कैसे बोलोगे, ऐसे करके तो नहीं बोल सकते हो आप। ओ बोलने के लिए आपको पर्टिकुलर मूवमेंट ही चाहिए। मूवमेंट. तो कभी कभी बच्चों को ये समझ में नहीं आती है,
तो भी स्पीच की प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी टंग का मूवमेंट सही तरीके से नहीं होता है, बच्चे डेवलप नहीं कर पाते, कभी टंग टाइटनेस की वजह से नहीं कर पाते, तो वहाँ पे स्पीच थेरेपी दी जाती है। कभी कभी जैसे स्पीच डिले ही चलता है, लाइक जैसे कुछ पैरामीटर्स है हर एज ग्रुप में, जैसे कि 2 साल के एज में जनरली बोला जाता है 150 to 200 तक वार्ड बच्चे के पास कलेक्शन होना चाहिए, इंक्लूडिंग मॉम डैड दादा दादी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। क्योंकि रिलेशन उनको 2 साल में समझ में नहीं आते हैं, तो उनको वो वर्ड ही पता है कि ये दादी है, ये दादा है, ये मम्मी है, ये पापा है। तो ऐसे करके मतलब ये उसके लिए वर्ड ही है। तो इंक्लूडिंग लाइट, फैन, बेड, चेयर, टेबल, एवरीथिंग। तो इसमें कम से कम एक 2 इयर्स के बच्चे में कम से कम 150 to 200 वर्ड्स के कलेक्शन होने चाहिए। नहीं है, देयर इज़ अ रेड फ्लैग, यू शुड कंसल्ट विद अ थेरेपिस्ट। ओके। फिर जैसे आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। आर्टिकुलेशन मीन्स उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जिसको हम बोलते हैं। तो कभी कभी प्रोनाउंस गलत कर लेते हैं बच्चे, जैसे एग्जामिनेशन, तो दीज आर लिटिल कॉम्प्लेक्स वर्ड, तो ये उन लोगों को प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ जाती होगी। रा, ला, ये सब में दिक्कत आती होगी, जबकि होनी नहीं चाहिए। ये सब आपको मैक्सिमम 2 to 2.5 इयर्स तक एक्सेप्टेबल है। अगर उसके आगे भी है तो रेड फ्लैग है, यू शुड कंसल्ट विद अ स्पीच थेरेपिस्ट। एंड स्टैमरिंग इज़ वेरी कॉमन, वो बहुत लोगों को बहुत बच्चों में देखी जाती है। एंड देन व्हेन दे ग्रो अप दे इनबिल्ट, एंड देन बड़े होने तक दे विल स्टैमर। हाँ, मतलब जब राइट टाइम में ट्रीट नहीं किया तो दे विल, वो तो स्टे कर जाएगा आपके साथ। बट स्टैमरिंग का जो ये है ना, थेरेपी से ठीक हो जाता है 100%। अगर सही टाइम पे हुआ, आप 15 इयर्स में आप आओगे थेरेपी करने के लिए, तो उसमें कितने चांसेस है ये तो डिपेंड करेगा बच्चों पे। अर्ली साइंस, द बेस्ट। सो अर्ली साइंस कब नोटिस 2 होता to है 3 इयर्स में स्टैमरिंग का? एवरी प्रॉब्लम का। ओके। एंड देन जो मतलब उसको वो टर्म को क्या बोलते हैं, तोतलापन को क्या बोलते हैं? स्टैमरिंग। ओके, सेम थिंग। स्टटरिंग, स्टैमरिंग। ओके, सो दैट कैन बी ऑल्सो लाइक कवर्ड, लाइक हाँ बिल्कुल 100%। एकदम। ओके, बाय द एज वो जाके मतलब थोड़ा टाइम लगता है, बच्चा टू बच्चा वेरी करता है, पर वो क्लियर हो जाता है अगर आप अर्ली एज में डिटेक्ट कर पाओ तो। क्योंकि अभी हमारे जैसे हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें सुनने में आता है, या कभी कभी पेरेंट्स से हमारी कन्वर्सेशन होती है। जैसे एक्चुअली क्या है ना, मेरे इन लॉज बोल रहे थे कि अभी बच्चा तो छोटा है, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ तो who will take risk? हो जाएगा तो ठीक है। हाँ। नहीं हुआ तो कौन देखेगा? who will? कौन सफ़र करेगा? बच्चा विल सफ़र। एंड स्पीच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। तो क्या होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके IQ को वो इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर स्पीच डिले है, दैट मीन्स आपका डेवलपमेंट भी डिले है। और एज वाइज स्पीच अगर डिले है तो डेवलपमेंट डिले हो रहा है, तो डेफिनेटली IQ पे जाके इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हम जानबूझ के उस चीज़ को अवॉइड करते जा रहे हैं, जो कि बाद में जाके बच्चे के इंटेलेक्चुअलिटी पे क्वेश्चन आ जाएगी। यस डेफिनेटली। तो जैसे पेरेंट्स को मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ अवॉइड मत कीजिए। बच्चे को कोई भी अनयूजुअल चीज़ें हैं तो अर्ली साइंस में ही उसको अनदेखा मत कीजिए कि बच्चा है,
ठीक हो जाएगा, नहीं होता है, और नहीं हुआ तो फिर कौन सफ़र करेगा? Your child will suffer. बच्चों को साइकोलॉजिकल इशू भी होती है, बच्चों को एंग्जाइटी होती है, 4 इयर्स 5 इयर्स बच्चों को एंग्जाइटी होती है, ये हम समझ ही नहीं पाते हैं। So what could be the signs? बड़े में तो we can understand, like थोड़ा सा मतलब डिप्रेस्ड होता है तो थोड़ा मतलब कुछ अनयूजुअल बिहेवियर होगा ही 100%। okay. या तो बच्चा बहुत ज़्यादा खाने लगेगा, या तो बच्चा बहुत ज़्यादा जिद करने लगेगा, Oh. या तो मतलब जो यूजुअल नहीं है। कभी हम बच्चे को लेके मूवी चले जाते हैं, तो मूवी में कुछ ऐसा हो गया जो बच्चे के दिमाग में बैठ गया। मैं मना नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली आप लेके जा सकते हो, पर क्या है कि थोड़ा सा देख के जाइए। What kind of movie? हाँ, जैसे हम बच्चों को लेके बाहर जा रहे हैं, बाहर कहीं पे हल्ला हो गया, कोई सामने कोई मारपीट कर रहा है, उसका इम्पैक्ट भी बच्चे में पड़ सकता है। Okay. बाहर छोड़िए, घर पे अगर मतलब जैसे पेरेंट्स के बीच में अगर कभी Fight, हाँ 19-20 हो गया, थोड़ा ऊंच नीच हो गया, उसका इम्पैक्ट तो बच्चे में तो 100% पड़ता है, और ज़्यादा पड़ता है। और ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि 2 फेवरेट पर्सन Fighting with each other. फाइटिंग विथ ईच अदर, That will definitely वो तो definitely. अच्छों को इम्पैक्ट कर देता हाँ है, हाँ तो एक बच्चे को तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। एकदम एकदम, and it will impact in such a way that बड़े होके ना it will give that childhood trauma. हाँ, ये एक बहुत बड़ी इशू है, चाइल्डहुड ट्रॉमा। Okay. चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कुछ दिन पहले ही एक बच्चा आया था, तो वो 2019 बॉर्न था, तो उसके बाद 2019 शुरू में क्योंकि कोविड आते आते उसके मम्मी ने बोला कि उसने चलना सीख लिया था, तो आई कैन एज्यूम कि कोविड 2020 में हुआ, तो इसका मतलब वो 1 साल का तो हो ही चुका था। तो उस टाइम तक वो मम्मा पापा सब कुछ बोल रहा था, सबको मतलब फेस देख के कॉल कर रहा था। तो घर पे क्या हुआ, घर पे किसी का डेथ हो गया। ओके एंड सिर्फ एक डेथ नहीं, बैक टू बैक 2 डेथ हुए, ओके मतलब 6 to 8 मंथ के ड्यूरेशन में। तो घर पे सब, और ऐसा नहीं कि ओल्ड एज पर्सन कि हाँ पता था बहुत दिनों से बीमार थे एंड ऑल, वैसा कुछ नहीं था, कुछ मतलब अनयूजुअल डेथ ही हुआ था। कोविड का टाइम था, कुछ बहुत फैमिलीज में ऐसा हुए हैं। तो बच्चे ने वो जो बैक टू बैक घर पे इंसिडेंट हुए, तो घर के फैमिली मेम्बर्स उसी में बिजी रहे, वो लोग आपस में सैड थे, आपस में एक दूसरे का सपोर्ट बने थे। हाँ सपोर्ट बने थे, लेकिन बच्चा बाद अवॉइड हो में गया। अवॉइड हो गया, ओके छूट गया पीछे। हाँ, ये सोच के कि इसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये छोटा बच्चा है, Okay. खिलौना दे दो, मोबाइल दे दो, दे के इसको बिठा के हम आपस में बड़े बात कर रहे हैं, क्योंकि वी आर सैड बिकॉज वी मतलब हमारे किसी कोई करीब लव्ड वन जिनको हम खो चुके हैं, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने एक दूसरे के सपोर्ट में बच्चा अवॉइड हो गया। ओके और वो बोलना स्टॉप कर दिया। ओके स्टॉप। हाँ, कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो फिर जैसे डॉक्टर के पास लेके गए, डिफरेंट जगह पे वो लोग गए, मूव करे, और जब तक वो मेरे पास आया तब तक वो 5 साल या 5.5 साल का हो चुका था, या शायद 6 इयर्स का ही होगा, आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो 5 इयर्स का बच्चा, मतलब इतना तो समझ में आ ही जाता है कि सामने क्या हो रहा है। तो जब हमने सेशन करी तब हमको एक्चुअल पिक्चर समझ में आया, व्हाट हैज हैपेंड। हाँ, he was confused at that time, why that person is sleeping continuously. Okay, that is very deep.
उसके अंदर इतने सारे सवाल थे कि वो सोते हुए इंसान को क्यों लेके गया. That he did not knew that someone एग्जैक्टली that और वो पर्सन उसके साथ खेलता था. okay. सडनली उसका जो दोस्त है जो मतलब घर पे खेलने के लिए जो दोस्त है वो सडनली सो रहा है और वो उठ नहीं रहा है और उसको लोग बाहर उस कंडीशन में And लेके जा रहे हैं. everyone was crying. हाँ. So like he thought that something bad has happened, but बिकॉज एवरीबडी. he did not knew the idea of death. एंड दैट इज द क्वेश्चन Mm-hmm. जिसका आंसर उसको आज तक नहीं मिला है. Okay. बहुत टाइम लगे हमको ये समझने में. ये उसके ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं पाता था पर शौक में उसने बोलना बंद कर दिया था. Okay. So how is he now? Is he capable of speaking? ही इज टेकिंग सेशंस. Okay, he's still taking हाँ, ही sessions. स्टिल टेकिंग सेशंस. ही स्टिल टेकिंग स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी. Uh-huh. सेशंस चल रहे हैं. नाउ ही इज बेटर Okay, देन okay, बिफोर. okay. बट अभी तक फुल्ली जैसे कि सेंटेंस एक 5 years 6 years बच्चा जैसे आपको एक्सप्लेन कर सकता है उस लेवल पे अभी तक नहीं आया है. Mm-hmm. इज टेकिंग सेशंस. Okay, I also want to share one very bad experience. Like ये speech बंद होना, like it could be a medical condition. I did not knew. It was my death of my grandfather in 2019. So मैं घर आई from school. So people were coming to my house, like long gone relatives. Like I meet them around like once in a year. Kind of relatives were coming. So why are they coming? I said them namaste, and they didn't smiled back, or they didn't say the word. I was like happy and coming to my house. So I saw everyone like very quiet. They were not talking anything. They were quiet. My grandfather was in hospital. So मेरा मतलब एक खेलने वाला बरंडा था, उसमें मैं गई. एंड देन आई वाज लाइक बैग रख के आई वाज जस्ट सिटिंग लाइक दिस. एंड देन माय सिस्टर केम, एंड सिस्टर वाज लाइक she was crying like anything. Her eyes were so red, and she told me that, like in Nepali we say that hajuba chaina, because my grandfather was in hospital, and now I knew that he's not there. So for like 2 minutes I couldn't speak a word. Something stuck here. Something got stuck here, because that was the first time I could see or feel death of someone very known and very close to our family. Like that was my first death. So And you will never not able to forget that. yes, I will never forget that. And that stuck inside my throat. I couldn't speak for like almost 2 to 3 minutes. In fact, till now you are मतलब वो रोक रोक के आना बातें. ठीक है, तो ये कभी भी ये मेमोरी जा ही नहीं सकती. Yes. If like I don't know, I was lucky. Maybe I was lucky. If मतलब लोग वहाँ नहीं होते, and then if conversation नहीं हुआ होता, if my sister like came and told, and if she had went, maybe मेरा भी speech रुक जाता. It happens like अभी मेरे कुछ को भी हो सकता है. I am बच्चे कैसे एक इंसिडेंट को परसीव करेंगे उनको खुद भी नहीं पता. इसीलिए बहुत सोच समझ करके, जैसे बड़े बूढ़ों ने पहले बोला है कि बच्चों को डांटो मत, बच्चों को मारो मत, बच्चों के सामने झगड़ा मत करो. इसीलिए जो हमारे
पहले जो बुजुर्ग हैं वो बोलते थे, अभी तो सब न्यूट्रल फैमिली है, सॉरी न्यूक्लियर फैमिली है, तो उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन पहले जब जॉइंट फैमिलीज की ट्रेंड ज़्यादा थी, तो तब बोला जाता था, जैसे मेरे दादाजी दादी जी, वो लोग गुस्सा करते थे अगर हमारे पेरेंट्स हम लोग को डांटते थे, तो पीटते थे। हाँ, कि ऐसा मत करो, हाँ, ऐसे न मत बोलो, हम्म, प्यार से समझा के बोलो। तो अभी वो रियलाइज होता है कि क्यों बोला जाता था ऐसा। because it gives a lot of impact. आप कैसे किस चीज़ को, किस इंसिडेंट को परसीव करोगे और वो इंसिडेंट आपके अंदर कैसे रह जाएगा, एक तो आपका उस पर कंट्रोल नहीं है और आपको पता भी नहीं है। जैसे एक मेमोरी है, जैसे आपने शेयर किया तो मैं भी शेयर कर रही हूँ। जैसे मेरी एक मेमोरी है, व्हेन आई वाज 4.5, माय सिस्टर वाज बोर्न Okay. एट दैट टाइम, और मुझे आसपास कुछ याद नहीं है, मुझे वो दिन खाली याद है और मुझे उस दिन का हर इंसिडेंट याद है। Okay. मम्मी ने किस कलर का कपड़ा पहना था, मेरे सिस्टर को किस कलर के कपड़े से रैप किया गया था, Same. तो मुझे और कुछ याद नहीं है। उसके आगे के, उसके पीछे के, मतलब मैं बता नहीं सकती। Yeah. लेकिन वो दिन मैं आज भी बता सकती हूँ, वो पर्टिकुलर इंसिडेंट जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा, हाँ. तो जैसे ये हैप्पी मोमेंट्स है वो दिमाग में रह जाते हैं। ये ऑफ कोर्स ये एक इमोशनल मूवमेंट Yes, था, yes, yes. तो Sad moments वैसे और हाँ, वैसे सिमिलरली सैड मोमेंट्स भी होते हैं, और वो कैसे इम्पैक्ट कर जाएगा यू नेवर नो yes. एंड यू कांट टेल। वो ये सिर्फ बच्चों के केस में नहीं, बड़ों के केस में भी होता है। तो ये जो मेंटल हेल्थ है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मतलब फिजिकल हेल्थ से भी कभी कभी कई बार ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेंटल हेल्थ को दे देना चाहिए। जैसे आपने पूछा ना कि कैसे आप अपने आप को करते हो, तो मतलब ये मैं बोल दूँ कि हाँ जाके आप ऐसे करो, ऐसे नहीं होता है। इसका एक प्रोसेस होता है, यू नीड टू फॉलो दैट प्रोसेस। रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करना होता है। जैसे हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, फिर हम रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है। वैसे ही मेंटल हेल्थ को ठीक रखने का एक प्रैक्टिस है कि आपको आप 10 मिनट एवरी डे मेडिटेट करो। meditate as in how do you meditate? Meditate as in just stay at one place where you are, because हमारे ब्रेन की वायरिंग ऐसी है कि हम एक साथ मल्टीपल थॉट को रन कर सकते हैं, तो वो नहीं करना है। बहुत सारा तरीका है। फॉर एग्जांपल आप एक कोई भी कलर, आपका फेवरेट कलर, ग्रीन कलर ले लिया, ब्लू कलर ले लिया, बस एक पीस ऑफ पेपर ले लो, लेके आप सामने रखो एंड फोकस इनटू दैट। Okay. दिस इज अ एक्सरसाइज। एक तो ये आपको एक दिन में नहीं हो जाएगा, और दूसरी बात है कि वो Continuous. वो कंटिन्यूअसली आप अगर करते जाओगे तो आप में वो कामनेस और ये डेवलप कर ही हो जाएगा। तो आप अपने आपको ही रिहैबिलिटेट कर सकते हो। So talking about physiotherapy and rehabilitation, so do you have any instances where you deal or where you have dealt with kids who have paralysis or something where they are not being able to walk properly? ऐसे बहुत सारे, जैसे बच्चों में एक बहुत ही कॉमन न्यूरो प्रॉब्लम होता है, सेरिब्रल पॉल्सी बोलते हैं उसको। सेरिब्रल मीन्स ब्रेन, पॉल्सी मीन्स वीकनेस। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि या तो पार्शियली ब्रेन डेवलप नहीं करता है सीवियर केसेस में, और माइल्ड केसेस में स्लो, मतलब ग्रोथ या डेवलपमेंट स्लो होता है। जैसे 12 to 15 मंथ के एज में एक बच्चे को वॉक कर लेना चाहिए, Okay. माइलस्टोन के हिसाब से। तो कभी कभी देखा जाता है, कोई रीज़न हो सकता है, कोई मेडिकल रीज़न हो सकता है, या फिर जीन? हाँ जेनेटिक भी होता है, पर जेनेटिक बहुत
रेयरली होता है. जनरली इश्यूज ही होते हैं, लाइक जैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन के वजह से होता है. जैसे कि बच्चा जैसे ही डिलीवर होता है, आपने सुना होगा, या मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं ना, बच्चे को ऐसे पकड़ के टैप टैप करते हैं पीछे ताकि बच्चा रोए. तो वो इसलिए की जाती है ताकि जल्दी से जल्दी ब्रेन में ऑक्सीजन पहुँचे. ओके. इसीलिए रुलाने की कोशिश की जाती है. ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल प्रोसेस है, और इसमें अगर लेट हो गया तो इसका मतलब 3 मिनट से ज़्यादा लेट हो गया, 3 मिनट के अंदर अगर बच्चा नहीं रो रहा है, फर्स्ट 3 मिनट, तो सेरिब्रल पॉल्सी होने के चांसेस है. ओके. बच्चे को अगर विद इन 48 आवर्स न्यूनेटल जॉन्डिस डायग्नोस हो गया तो सेरिब्रल पॉल्सी होने की चांसेस है. बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं. So how do you deal with those kids? We deal with those cases through developmental therapy, occupational therapy, physiotherapy, speech therapy. Okay, what is like occupational therapy? What do you exactly do? Occupational therapy is something which is like एक 10 साल का बच्चा, उसका ऑक्यूपेशन क्या होना चाहिए? 10 लाख कमाएगा मंथली, वो तो ऐसा No. तो उसका ऑक्यूपेशन है कि वो सुबह उठेगा, उठ के फ्रेश होगा, ब्रेकफास्ट करेगा, रेडी होगा, स्कूल जाएगा या होमवर्क करेगा, पढ़ाई करेगा. Okay. ये जो बेसिक प्रोसेस है नॉर्मल, अगर नहीं कर पा रहा है, जैसे कि डेली एक्टिविटीज, कपड़े पहनना, बटन लगाना, जिप अनजिप करना, दीज आर बेसिक. अगर इसमें प्रॉब्लम है किसी को तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प करती है. ओके. ओके. सो टू मतलब रिकवर दैट इशू. मतलब कभी कभी पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बहुत शैतान है, काम नहीं करता है, अपना काम नहीं करता है, जिप नहीं लगाता है, he has become very naughty. दैट इज समथिंग एल्स. Okay. दैट इज समथिंग एल्स. Okay. नहीं करना और नहीं कर पाने में डिफरेंस है. Okay. Okay. But sometimes parent maybe they can't differentiate between नहीं करना या नहीं कर पाना. मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट बच्चे करना नहीं चाहते हैं, मम पेरेंट्स उनको खिला रहे हैं, कपड़ा पहना रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल इनएबिलिटी. Okay. Okay. That is something else. दैट इज समथिंग एल्स. Something else. Okay. Okay. Physical inability मतलब मुश्किल होता है करना, वो विजिबल एबल ही नहीं है उस काम को करने के लिए. ओके. ओके. नहीं कर रहा है वो, दैट इज समथिंग एल्स. वो मे बी पेरेंट्स के सामने टेंट्रम की वजह से नहीं कर रहा होगा या नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन नहीं कर पाना इज समथिंग एल्स. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप मेरे सोशल मीडिया पेज में जाओगे तो आपको बहुत सारे बच्चों को फोटोज़ वीडियोस मिलेंगे. उसमें एक बच्ची है, भूटान से आई है. उसको स्पाइना बाइफिडा हुआ था. स्पाइना बाइफिडा मीन्स क्या होता है, आपके लोअर बैक में, ये बच्चों के केस में ही होता है, बड़ों में नहीं देखी जाती है. जो इंटरनल बॉडी फ्लूइड है वो प्रॉपरली ड्रेनेज नहीं हो पाती है, तो वो कहीं पे जाके जमा हो जाना जिसको बोलते हैं. तो स्पाइना बाइफिडा उस प्रोसेस को बोलते हैं. वो क्या होता है लोअर बैक में, क्योंकि लोअर बैक इज़ द वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि हम बैठते हैं तो पूरा बॉडी का वेट उसी में जाता है. तो वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है और एक ग्लैंड की तरह बन जाता है स्किन के बाहर से. उसको सर्जरी करना पड़ता है. तो वो सर्जरी के बाद अगर आम भाषा में मैं समझाऊँ तो कमर से नीचे तक वो पैरालिटिक कंडीशन में, मतलब पैरालाइज्ड है ड्यू टू दैट सर्जरी. ओके. ओके. सर्जरी के इफेक्ट की वजह से वो बच्ची कमर से नीचे तक पैरालाइज्ड है. तो हम उसको रिकवर कर रहे हैं अभी. एवरीथिंग इज फाइन विद दैट चाइल्ड.
वो अच्छे से बात करती है, अच्छे से आप उसको बोलोगे कि ऐसे सिट डाउन, तो शी विल ट्राई टू सिट डाउन, गेट अप, तो शी विल ट्राई टू गेट अप, Okay. but she is not able to do that. Okay. So what is the progress in her after coming to the session? Of course, better. Better. Okay. So like you like बच्चों के साथ डीलिंग तो हो गया, बट हाउ डू यू डील विथ पेरेंट्स लाइक हु आर कमिंग विथ देयर किड्स, बिकॉज you know one emotional attachment is there. That is a big challenge, you can say. Like जैसे सोसाइटी में बोला जाता है कि एक जैसे अगर मैं बीमार होती हूँ तो सिर्फ मैं ही बीमार होती हूँ, अगर मेरा बच्चा बीमार है तो पूरी फैमिली बीमार है. तो ऑफ कोर्स पेरेंट को डील करना बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि ये वो पेरेंट्स है जिनको पता है जिनको पता ही नहीं है कि उनके बच्चे चल पाएंगे या नहीं, अपने पैरों पे खड़ा हो पाएंगे या नहीं कभी भी. तो वो उस मतलब दे आर नॉट श्योर तो बहुत दूर की बात है. वो क्या करे, मतलब वो होप करे. हाँ, होप करे कि ना करे, इसमें भी क्वेश्चन है. जैसे हिंदी में कहावत है ना कि पानी के बिना लोग जी सकते हैं लेकिन होप के बिना नहीं जी सकते. इन पेरेंट्स को देखिए आप, ये होप रखे कि नहीं रखे, इसमें भी इन लोगों का क्वेश्चन है कि मेरा बच्चा कल को चल भी पाएगा या नहीं. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के साथ डील करना, क्योंकि वो किस मेंटल कंडीशन में है यू कैन नॉट इमेजिन इवन. Yes. And how do you convince them, or how do you deal? नो नीड टू कन्विंस देम. आपको उनको बताना पड़ेगा कि दीज आर दी प्रोसेस, इफ़ यू गो थ्रू दिस प्रोसेस देन यू विल गेट दिस 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 दिस. दूसरे बच्चे के प्रोग्रेस को देखते हैं तो वो लोग वहाँ पे एक होप करते हैं कि शायद मेरा बच्चा भी हो जाएगा. तो वो एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपकी कि वो सामने वाला आप पे भरोसा कर रहा है आपके मतलब खुद के बच्चे के लिए कि मैं इनके यहाँ पे लेके आई हूँ तो मेरा बच्चा शायद चल लेगा. तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एनीवे, तो जैसे मैं खुद पे मतलब एवरी मंथ 15 days के गैप में आई सिट विद पेरेंट्स, काउंसलिंग, आई टॉक टू देम, क्या हो रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है. तो जब प्रोसेस आपका प्रॉपर हो, आपकी प्लानिंग अगर प्रॉपर हो, एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो, तो जब रिजल्ट आना शुरू होता है ना तो पेरेंट्स वो उनके जो चेहरे में जो चमक आती है ना वो आपको चैन की नींद देती है. yes. जब पेरेंट आके बोलता है मैम ये ना इम्प्रूव हुआ है, वो ना बैठने लगी है, मुझे लगता है वो धीरे धीरे बहुत जल्दी खड़ी भी हो जाएगी. योर जॉब इज डन. So talking about this only, what is the most magical moment for you, like where you cured a child, or the developments which shown were magic, like magic? ये मैजिक तो मेरे साथ रोज होता है. हाँ, सच में कुछ ना कुछ कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही रहा है. Okay, that small milestones give you self satisfied. एकदम. वो आज ये बच्चा कुछ कर पा रहा है, कल वो बच्चा कुछ कर पा रहा है, क्योंकि प्रोसेस तो सबकी चालू है ना. सब इन प्रोग्रेस है, सब प्रोसेस के अंडर है. तो जैसे कल मतलब मैं अगर कल की बात करूं तो पेरेंट्स आके एक पेरेंट आई मेरे पास आके बोली कि मैम मेरी बेटी की जो सेंसरी इशू थी ना वो बहुत कम हो गई है. मैंने बोला कैसे पता चला आपको? तो बोलती है नहीं वो पैर नहीं रखना चाहती थी ना ज़मीन पे, अभी तो पैर रखती है, अभी तो हाथ पकड़ने में चलना भी शुरू करी. तो ये जो एक्साइटमेंट पेरेंट के चेहरे पे आती है ना तो आपको चैन की नींद आ जाती है. लाइक एक होता है ना पेरेंट्स
घर पे होते हैं, like I have also seen some parents, some childs growing up, so their first step is हाँ, celebrated, their first word, bite, word, mama. or anything, their first is celebrated. So it happens with you in a daily basis. In a How, daily basis. yes, how how do you feel, or how do you deal with the overwhelming part? ये हालांकि ये 15 ईयर्स से चल रहा है ये हाँ, हाँ, प्रोसेस, हाँ, हाँ. बट क्या है ना, फिर भी नया ही लगता है. This is very new, like हाँ, every day it's a एवरी new. मोमेंट न्यू ही लगता है, क्योंकि फैमिली अलग अलग है, बच्चे अलग है, उनके स्टोरीज अलग है, उनके बैकग्राउंड्स अलग है. तो वो जो मतलब वो क्या बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उसके मतलब उन्होंने क्या स्ट्रगल फेस किया है, उसके हिसाब से उनके चेहरे पे चमक आती है. Okay. That अभी मेरे को सुनने में ही I am feeling very happy. You are experiencing all the while. हाँ, ये एक चीज़ है ऐसी, सिर्फ बच्चों में नहीं, हाँ, ये बड़ों में even, बड़ों में भी है. जैसे एक क्वाड्रिप्लेजिक बच्चा 22 साल 23 साल का मतलब हमारे मतलब भाई बहन के एज का है, वो फुल बॉडी पैरालाइज्ड होके आया है. ठीक है, तो जैसे जैसे वो हर दिन बताता है ना कि मैं ना ये लेफ्ट हैंड ना अभी ऐसे ऐसे मूव कर पा रहा हूँ. Okay. ठीक है, तो उसके चेहरे पे जो चमक आती है ना कि मेरा हाथ में मूव कर पा रहा हूँ. जैसे अभी बीच में थोड़ा सा मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं. तो एक 22 साल का लड़का है जो कि दोस्तों के साथ घूमने गया था एंड स्लिप करके बर्फ़ में गिर गया. तो उसका सर्वाइकल स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ एंड फुल बॉडी पैरालाइज्ड हो Okay. गया. Okay. तो जब वो आया था तो उसको राइट टू लेफ्ट करने में 2 लोगों को चाहिए होता था. Okay. मतलब टर्न हाँ, करने turn में करने में. 2 लोग चाहिए होते थे. तो अभी वो उठ के बैठ रहा है, Oh, that खुद ही is, कपड़ा खुद ही मतलब ऑब्वियसली upper body. अपर बॉडी जैसे टी शर्ट वगैरह वो खुद ही पहन लेता है. लोअर पार्ट में हेल्प ज़रूरत होता है. तो ये ना जैसे आप अचीवमेंट देखते हो कि ये बच्चा ये कर रहा है, अरे ये बच्चा वो कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली एक तो आप खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो. आप जैसे बोले ना कि आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हो, करना पड़ता ही नहीं है मुझे. Okay. ये जो छोटे छोटे अचीवमेंट देते हैं ना, जब सामने वाला खुद बताता है तो आप में एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाती है. और घर जाके अपने आप को रिहेबिलिटेट करने के टाइम में भी दिन भर की जो चीज़ें हैं वो एक बार याद कर लोगे ना तो कीप काम वाली सिचुएशन आ जाती है. Okay. So I wanted to ask, ये बच्चों में भी कायरो सेशन होता है? नहीं, You do not like allow, और या फिर कायरो मतलब बच्चों के साथ लिंक्ड अप भी नहीं होता है? नहीं, बहुत जगह पे होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है. पर मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ. Because bones are नो, very. नॉट बोन्स, क्योंकि ये कायरोप्रैक्टिक एक ऐसी चीज़ें है ना कि अगर बचपन में उन लोगों को पता चल गया कि ये करने से बॉडी में आराम मिलता है तो लोग एफर्ट करना बंद कर देंगे. Okay. पर जोक्स अपार्ट, बॉडी की डेवलपमेंट भी मैटर करती है. मैटर करती है. So like you mean to say like doing Cairo is, less effort putting than doing yoga or any mobile ऑफ कोर्स, Okay. आप जाओ जाके कायरो बेड पे लेट जाओ, बाकी तो कायरोप्रैक्टिक का काम है. Okay, that way. हाँ. Okay, it's been, how long you are into this field? 10 years? More than 10 like near about 15 years now. 15 years. And I know that you have worked in big cities like Jaipur, Kolkata, and Delhi also हाँ for a shorter period. okay. So there's difference working there and here.
Of course, Mm-hmm. that has to be, Okay. because those are big cities, so developments are big. Mm-hmm. Equipments. इक्विपमेंट्स तो चलो आप वेंडर से मंगवा लोगे, हाँ. लेकिन अवेयरनेस Okay. कि आपको किस टाइम पे क्या करना चाहिए, Okay. Okay. ठीक है. So. आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, करते करते हो सकता है एक्सीडेंटली आपका पोस्चर, आप इम्बैलेंस हो गए और आपको इंजरी हो गई. Mm-hmm. यू नीड टू गो टू अ फिजियो. Okay. वहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन कुछ नहीं कर पाएगा. मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन कैन गिव यू पेन किलर. Mm-hmm. वो हील करने के लिए, उस इंजरी को हील करने के लिए यू नीड टू गो टू फिजियो. Mm-hmm. ये अवेयरनेस नहीं है Mm-hmm. यहाँ पे. Okay. So what percentage of Siliguri people are aware of the physiotherapy or Cairo sessions? What सोशल percentage? मीडिया की वजह से तो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत है, बट फिर भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है उतना. किससे कंपेयर कर रहे हो? Like comparing to other big cities. हाँ, बिग सिटी से तो अवेयरनेस उतना है नहीं. Mm-hmm. पर अभी अगर करंट सिचुएशन की बात करो Mm-hmm. तो द अमाउंट ऑफ पेशेंट आई एम हैंडलिंग पिछले 3 साल पहले से तो बेटर ही है. Okay. जब हमने शुरू किया था Mm-hmm. उससे तो बेटर ही है. So you are India's 25th DMI practitioner. So what does this entitle mean? ओके, सो DMI, डायनेमिक मूवमेंट इंटरवेंशन, ये एक पर्टिकुलर कोर्स होता है. इंडिया में तो देखो कोई भी कुछ भी कर रहा है, वो तो ऑर्थोपेडिक के ड्राइवर भी फिजियोथेरेपी कर रहा है. Mm-hmm. लेकिन बाहर के अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओगे तो आपके कुछ पैरामीटर्स है वो आपको मैच करने होंगे, तभी आप कर सकते हो. जैसे कि अगर आप पीडियाट्रिक थेरेपी प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू नीड टू हैव दैट सर्टिफिकेशन DMI. अदरवाइज यू कैन नॉट टच अ चाइल्ड. I mean, you can touch in that way, but for therapy, for treatment purpose, you cannot touch it. So you are India's 25th 25th. DMI practitioner. Okay, so how many DMI practitioners are? Right now, मतलब अगर आज के दिन में देखें तो वो 30 है टोटल. Okay. मतलब आप www.dmi.com में अगर जाओगे, वहाँ पे कंट्रीज़ में जाके क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आएंगे, कंट्रीज़ की ऑप्शन आएंगे. वहाँ पे आप इंडिया डालोगे तो आपको वहाँ पे 30, आज के डेट में 30 प्रैक्टिशनर दिखेंगे. उसमें से 25th में मेरा नाम है. Okay. So you are also been you have been awarded as and featured at Physio Times and awarded the Mirchi Excellence Award. Sutra has. So how does it feels to Of be? course. It's really good. Definitely. Okay. So we at Mayur, we always believe in holistic development of a child, and we also foster creative activities like art, dance, music, and a lot of other sports. Like we have tied up with Rohit Sharma Academy. Apart from that, also we are doing a lot of other activities. So these activities are for the holistic development of child. So at Sutra, do you also incorporate these kind of activities for children? Yeah. Mm-hmm. Like music, Mm-hmm. art, matlab drawing, painting. These are part of development. Okay. Colors, Colors, Shape. shapes, sequences, Okay. puzzles. Uh-huh. These are part of development. Okay. That way, like, child can have, development process smooth, course, smooth like development. if you are
doing, like for example, आप एक पेन एंड पेपर में आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो, दैट मीन्स उसके बारे में कुछ तो थॉट है आपके दिमाग में, जो कि आप उसको इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हो एंड उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो. जैसे बच्चे कभी कभी फैमिली बनाते हैं, जैसे मॉम डैड, अगर कोई ब्रदर सिस्टर है तो हाथ पकड़ के ऐसे चल रहे हैं. तो ये बच्चे का इमेजिनिंग कैपेसिटी दर्शाता है कि वो वो कैसे इमेजिन कर रहा है, क्योंकि इमेजिन करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे. अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, फॉर एग्जांपल ये इतने देर से जो भी मैं बोल रही हूँ, ये मैंने किया है, देखा है, ओके, वो मेरे दिमाग में है, उसी का इमेजिनेशन मैं यहाँ पे रख रही हूँ, जो कि आपको फील हो रहा है कि अरे ऐसा 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 होता होगा. तो दिस आर अ प्रोसेस. तो ये प्रोसेस नहीं हो पाता अगर मैंने बचपन में ड्राइंग नहीं की होती. okay. So, this creative aspect also affect the emotional quotient and also intelligent quotient of a Of a child, yes. Okay. These are also necessary thing. Not at all. बहुत टाइम देखा जाता है, नहीं पहले पढ़ाई करो, नंबर्स लाओ, मार्क्स लाओ. लेकिन ये जो क्रिएटिव पार्ट है पर्सन के, छोटा सा बच्चा है, उसका हम क्रिएटिव पार्ट को फोकस ही नहीं कर रहे, देख ही नहीं पा रहे, और उसको हम अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे. ठीक है, तो ये हम डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं. Okay. So that way, every child must have the holistic approach towards education. पार्टिसिपेट तो करना ही चाहिए. एकदम. So that what we do, we practice at Mayur. So the holistic development and the extracurricular activities side by side with academics, that we foster at Mayur School. I'm sure. And as a responsible, school is a second home. Yes, For a child. exactly. They spend most crucial time or most important time of their day at school. At school. Yes. तो स्कूल में ये सब चीज़ें होनी ही चाहिए. जितना आप एक बच्चे को, वो एक्सप्लोर कैसे करेगा, वो अपने इमोशन को एक्सप्लोर कैसे करेगा. फॉर एग्जाम्पल, बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, वो खेल नहीं रहा है, तो वो जो हार जीत वाली जो चीज़ें हैं, वो कैसे समझ में आएगी उसको. एंड ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट पैशन. हाउ विल दे नो अबाउट देयर पैशन. हाँ, इंटरेस्ट किस पे है. एग्जैक्टली. सब क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, पर आई डोंट नो. हाँ, वो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है. किसी को वॉलीबॉल में इंटरेस्ट आता है, किसी को फुटबॉल में इंटरेस्ट आता है, टेबल टेनिस में. हाँ, टेबल टेनिस पे इंटरेस्ट आता है, किसी को चेस में इंटरेस्ट आता है. तो ये इंटरेस्ट तभी हम एक्सप्लोर कर पाएंगे जब तक बच्चा पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है. तो वी नीड टू एनकरेज द चाइल्ड so that to participate. That's where Mayur School comes to play the role. So we foster, and we are doing a lot of events. Like last Saturday only we had kickboxing championship. So every school will not push their kids for kickboxing. They are the parents who can do that. But as a school whole, every school will not do. And 15 days ago, we had skating championship. Okay, that's nice. That way also, parents will only be involved rather than like usually, generally. But Mayur is coming in the picture, like being the, little bit giving world-class experiences to the children. So, I feel that's a great initiative. मेरे ख्याल से ये बच्चों को मिलना ही चाहिए. इनफैक्ट जब हम बड़े हो रहे थे तब इन्वायरमेंट कुछ अलग थी. yes. अभी इन्वायरमेंट कुछ अलग है. अभी अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो
competing nature है, बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है. So one thing also I would like to highlight, like when we were kids, we like I was very participative, and I was open to a lot of other genres, and dance was also one of the part. So I wanted to dance. Apart from academics, I wanted to dance, but we did not had that dancing class or dance class at our school. So what my mom did was she hired a dance teacher separately. So that thing, Mayur, we have a dance teacher, in-house dance teacher, and we That's have great. particular dance classes, sports classes, yoga classes That's great. to children. So that way, the holistic development part also, like it's that's a yeah. great initiative. मैं बोलूँगी हमारे स्कूल ने बहुत ही अच्छा प्लान किया है ये होलिस्टिक अप्रोच के लिए. इनफैक्ट मुझे इनवाइट करना भी आई एम श्योर ये सारे चीज़ पेरेंट्स देखेंगे एंड वो डिफरेंसेस अगर कुछ है तो समझ पाएंगे. तो ये जो डिफरेंट जॉनर के लोग आ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, पेरेंट को एक थॉट भी मिल जा रहे हैं कि ओके दीज आर दी करियर स्कोप. Yes, यहाँ exactly. पर भी जहाँ जा सकते हैं. Exactly. इन्फॉर्मेशन नहीं होती है ना, Yes, बिकॉज वी आर इन टू टायर सिटीज. वी आर नॉट इन मेट्रो सिटीज जहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं. तो यहाँ पे जब तक हम देखते नहीं हैं हमको समझ में नहीं आता है. तो आई एम श्योर ये इनिशिएटिव मयूर स्कूल का मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा माइलस्टोन देगा मयूर स्कूल को इन फ्यूचर. Thank you so much. Thank you so much. And ज़्यादा मतलब लंबा नहीं करते हुए, let's end the conversation. But I am taking a lot of takeaways from you, and the insightful conversation has enlightened me. आप तो मेरे से क्वेश्चन पूछते जाओगे, मैं बताते जाऊंगी कि 15 साल दिए मैंने. 15 सालों के बाद मैं कैसे खत्म कर पाऊँ इतनी जल्दी. Yes, that is you, Sutra, Dr. Himani Roy. Thank you so much for being with us at Kalamveer, and we are very, very grateful for your time and your insights. And thank you so much. The amazing session, the heart-feeling session with you. Thank you. Thank you, Kritika, for inviting me into this conversation. And of course, अगर इस conversation से किसी को help मिल रही है, I'll be grateful. Thank you. Okay, thank you.